Hello and welcome you all. Dear students, this is quick revision session for unit number 5 of the subject digital communication. So dear students, this session is for quick revision of information theory. We'll brush up few important things related to this unit. First part is definition of information. We'll consider some messages like M1, M2 up to MK having probabilities P1, P2 up to PK. Then information contained in each message is given as Ik is log 1 upon probability and this log is log to the base 2. Properties of information. First property is information is 0 if probability is 1. We know that 1 means maximum probability. तो ऐसे याद रखना है, अगर probability maximum है तो information 0 लगता है. Second property, information increases. This upward arrow indicates increasing value. Ik information increases as probability decreases. Downward arrow increases decreasing value. Third, information is always positive. So Ik is greater than or equals to 0. And fourth, Ik, that is information, is continuous function of probability. तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे सिर्फ इक्वेशंस याद रखना है. यू कैन राइट इट इन योर ओन वर्ड्स. नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी. हर एक मैसेज के लिए अलग अलग इंफॉर्मेशन लगता है. सो इंफॉर्मेशन एंट्रोपी इज एवरेज इंफॉर्मेशन पर मैसेज. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी. इट्स प्रॉपर्टीज. एंट्रोपी इज ऑलवेज बाउंडेड बिटवीन दिस टू वैल्यू 0 लेस देन इक्वल्स टू h लेस देन log k to the base 2. Second, entropy is 0, that is h is 0 if probability is maximum, that is probability is 1. Third, entropy h is log k to the base 2 if probability is 1 upon k. Now information rate. Information rate is denoted by capital R, which is small r into h. So it is product of, small r means number of messages per second, h means entropy. So it is product of number of messages per second and entropy. Source coding theorem or Shannon's first theorem. Its statement is given DMS, that is discrete membryless source. DMS मतलब discrete membryless source. Given DMS of entropy h, average code word length L of any source coding is bounded as L is greater than or equals to h. L मतलब average code word length है. It is given by this formula. L is summation k is equals to 1 to m into inside the summation probability into length of message mk. Length means suppose एक हम लोगों ने कोडिंग अप्लाई किया और एक मैसेज के लिए कोड आ गया 101. So there are 3 bits. So length of this will be 3. So probability into length of message. Then this is the formula of entropy. Summation k is equals to 1 to m. Probability into log 1 upon probability. Log is log to the base 2. Now this statement is L minimum, मतलब minimum average length is equals to h. That is entropy. This is because according to the statement we have L greater than or equals to h. So L minimum is equals to h. The code efficiency is given by code efficiency zeta. It is h upon L and it is expressed in percentage. We will solve few numericals, then this concept will be more clear to you. Next is Hofmann code. We will discuss one numerical so that this concept will be clear to you. Given question is, given the messages x1, x2, x3, x4, x5, 5 messages are given with probabilities 0.4, 0.19, 0.16, 0.15, 0.1 respectively. Construct code word by minimum variance Hofmann code. Compute source entropy, code word length, efficiency, redundancy and variance. First part, we need to prepare one table which is called Hofmann's code table or Hofmann's book. ये ऑलरेडी मैंने बना के रखा है. देखो ये जो मैसेजेस गिवन मैसेजेस है, यू नीड टू राइट इट लाइक दिस x1, x2, x3, x4, x5 and very important part, you need to write all the probabilities in decreasing order. Presently given values are already in decreasing order, so I am not reshuffling it. पहला है 0.4, 0.19, 0.16, 0.15, 0.10. These are the given values. ये already decreasing descending order में, so I am not shuffling anything.
अब क्या करना है, लास्ट के दो बिट्स कंबाइन करना है, मतलब लास्ट के दो प्रोबेबिलिटीज ऐड करना है। तो आई विल ऐड 0.15 एंड 0.1, इसका आंसर आएगा 0.25। ये 0.25 नए मतलब सेकंड स्टेज में लिस्ट में ऐड करना है। कैसे ऐड करना है, ये 0.4 एज इट इज लिखा, 0.25 इसका आंसर, ये दो ऐड करने के बाद आंसर आया 0.25। इट इज रिटन लाइक दिस, यहां से एरो बना के मैंने लिखा है 0.25। फिर 0.19 नीचे शिफ्ट होगा। ये वैल्यू, ये जो कैलकुलेट किया हमने 0.15 प्लस 0.10, ये दिस वैल्यू इज 0.25 विच इज ग्रेटर देन 0.19, इसलिए इसके पहले लिखा। फिर ये 0.19 यहां पे आ गए, ये 0.16 नीचे शिफ्ट गया। फिर से सेम लॉजिक अप्लाई करना है, लास्ट के जो दो प्रोबेबिलिटीज है उनको ऐड करना है। सो आई विल ऐड 0.19 प्लस 0.16, इट इज 0.35। फिर से नए लिस्ट बनाना है, 0.4 एज इट इज, इसके बाद मैंने ये नया वैल्यू ऐड किया 0.35 और ये 0.25 शिफ्ट हो गया। फिर से ये दोनों ऐड करना है, दिस आंसर इज, ये है 0.35 एंड दिस इज 0.25, दिस आंसर इज 0.6। अब देखो 0.6 है मतलब 0.4 से ज्यादा है, तो ये पहले लिखा और 0.4 नीचे शिफ्ट हो गया। अब दिस इज द एंड ऑफ टेबल। कब तक ये कंटिन्यू करना है, टिल यू विल बी लेफ्ट विथ ओनली 2 प्रोबेबिलिटीज। अब जो दो प्रोबेबिलिटीज है लास्ट के, उनको कोड असाइन करना है 0 1, ये यहां पे रेडिंग से लिखा है मैंने 0 1। अब जो जो कंबाइन किया, मतलब यहां से देखो, यहां पे ये लास्ट दो बिट्स हमने कंबाइन किया, व्हेनेवर यू आर कंबाइनिंग इट असाइन 0 एंड 1। यहां पे ये दो प्रोबेबिलिटीज असाइन कंबाइन किया है, असाइन 0 एंड 1। ये दो प्रोबेबिलिटीज कंबाइन किया है तो असाइन 0 एंड 1 एंड सो ऑन। अब कोड वर्ड लिखना है, यहां पे मैं कोड वर्ड लिखता हूं। एग्जाम में आप लोग सेपरेटली टेबल बना के भी कोड वर्ड ऐड कर सकते हो। सो आई विल राइट कोड वर्ड। अब देखो ये 0.4 पाथ ट्रेस करना है, मतलब देखो ये 0.4 यहां से यहां शिफ्ट होगा, यहां से यहां शिफ्ट होगा और यहां से यहां शिफ्ट हो गया। इन द फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज कोई भी 0 और 1 वैल्यू असाइन नहीं किया था इसको, यहां पे आने के बाद वैल्यू 1 असाइन किया है। सो दिस कोड इज कोड 1 फॉर x1 आई एम टॉकिंग अबाउट। x1 का कोड 1 आ गया है। x2 का पाथ ट्रेस करना है। देखो x2 0.19 था, ये यहां पे आ गया है, यहां पे कोड है 0, तो पहले मैं 0 लिखता हूं, ये 0 है। फिर ये कंबाइन होके यहां पे आ गया है, इसका कोड है 0। हमेशा याद रखना है, रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। देख फिर से देखो, ये 0.19 यहां पे कोई कोड वर्ड नहीं है, यहां पे शिफ्ट हो गया, यहां पे कोड है 0, तो ये पहले 0 लिखा मैंने, रिवर्स वे में लिखते जाना है। फिर ये वैल्यू यहां पे आ गया है, यहां पे कोड है 0, फिर ये 0 यहां पे लिखा, फिर ये कंबाइन होके यहां पे आया, ये 0 है, तो इसका कोड आ गया 0 0 0। फिर x3 का कोड लिखेंगे। x3 का देखो ये वैल्यू 0.16 है, यहां पे शिफ्ट हो गया, यहां पे कोड है 1, रिवर्स वे में लिखना है। फिर ये यहां पे आ गया, यहां पे कोड है 0, फिर यहां पे कोड है 0। नेक्स्ट x4 के लिए देखो, पहले यहां पे 0 बिट है, फिर ये कंबाइन होकर यहां पे आया, कोई कोड नहीं है, यहां पे 1 है तो 1 लिखा मैंने। देखो ये x4 आई एम टॉकिंग अबाउट, यहाँ पे 0 है तो पहले 0 लिखा, ये कंबाइन होकर यहाँ पे आया, कोई कोड नहीं, यहाँ पे 1 है तो 1 लिखा, और ये कंबाइन होकर यहाँ पे 0 आया है तो ये 0 लिखा। फिर x5 पे पहला कोड है 1, फिर ये कंबाइन होकर यहाँ पे आया, कोई कोड नहीं है, फिर 1 है यहाँ पे, फिर ये कंबाइन होके 0 आ गया। सो दीज आर द कोड्स करस्पॉन्डिंग टू मैसेजेस x1 x2 x3 x4 x5। नाउ लेंथ ऑफ कोड, मतलब हर एक का लेंथ कितना है, लेंथ मतलब नंबर ऑफ बिट्स इन दैट कोड। जैसे इसका लेंथ हो गया 3, मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, इसका लेंथ 1 होगा क्योंकि इसमें एक ही बिट है फॉर x1, इसका लेंथ 3 है, इसका लेंथ 3 है, देयर आर 3 बिट्स, दिस लेंथ इज आल्सो 3, दिस लेंथ इज आल्सो 3। Now to make the calculation simple, I have made a list of formulae which is required to perform the calculation. पहला पार्ट एंट्रोपी कैलकुलेट करेंगे। Look at the formula of entropy, that is H। ये फॉर्मूला, मेक द थिंग सिंपल, ऐसे याद रखना है। प्रोबेबिलिटी इंटू लॉग 1 अपॉन प्रोबेबिलिटी, लॉग इज log टू द बेस 2, और सबका समेशन लेना है। अपने पास 5 वैल्यूज है, सो फर्स्ट वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी इज 0.4, तो मैं ऐसे लिखता हूं 0.4। आई एम नॉट राइटिंग द फॉर्मूला, आई ऑलरेडी रिटर्न, डायरेक्टली मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं। तो पहला प्रोबेबिलिटी लेना है 0.4 इंटू log टू द बेस 2। देखो 1 अपॉन पी के मतलब 1 अपॉन 0.4। सेम वे दूसरा प्रोबेबिलिटी लिखना है 0.19 log टू द बेस 2
1 upon 0.19. Likewise, third value 0.16 ये value x3 का log to the base 2 1 upon 0.16 plus fourth value 0.15 log to the base 2 1 upon 0.15 plus fifth value 0.1 log to the base 2 1 upon 0.1. अब कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट सेशन में पूछा था कि ये कैलकुलेशन टफ लग रहा है कैलकुलेटर पे. देखो बहुत सारे कैलकुलेटर पे डायरेक्ट ऑप्शन है, आप log 2 सेट कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो. अगर ये आपके कैलसी में नहीं है तो ये कैलकुलेशन कैसे करना है. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कैलकुलेशन, ये देखो ये ऐसे यहां पे लिखना है 0.4 log 1 upon 0.4 डिवाइडेड बाय log 2. मतलब कैलसी पे LOG जो नॉब है log, दैट इज बाय डिफॉल्ट log टू द बेस 10, तो यहां पे मैं कुछ नहीं लिख रहा हूं. तो log टू द बेस 2 करना है आपको, तो log 1 upon 0.4 डिवाइडेड बाय log 2 ये पहले कर लो चाहो तो, और जो आंसर आया है दैट इज मल्टीप्लाइड बाय 0.4 क्योंकि यहां पे 0.4 है. सो ये आंसर है 0.5287. Likewise, you can calculate all values, and if you complete this calculation, तो एंट्रोपी H का आंसर, आई एम राइटिंग दिस आंसर डायरेक्टली, जैसे मैंने अभी कैलकुलेशन एक्सप्लेन किया आप लोगों को. सो वैल्यू ऑफ H विल बी इक्वल्स टू 2.1495. यूनिट इज बिट्स पर मैसेज. इट इज बिट्स पर मैसेज. दिस इज द वैल्यू ऑफ H. अब L कैलकुलेट करना है. अगेन मेक द थिंग सिंपल. फॉर्मूला देखो, समेशन मतलब सबका एडिशन करना है, प्रोबेबिलिटी इनटू लेंथ ऑफ ईच मैसेज. मतलब पहला प्रोबेबिलिटी कितना है 0.4, सो आई विल राइट इट लाइक दिस 0.4 इनटू 0.4 से रिलेटेड लेंथ जो वैल्यू मैंने ब्रैकेट में लिखा है इनटू 1 प्लस सेकंड प्रोबेबिलिटी कितना है 0.19 इनटू लेंथ 3 प्लस थर्ड प्रोबेबिलिटी 0.16 इनटू लेंथ 3 प्लस नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी 0.15 ये वैल्यू इनटू इट्स लेंथ 3 प्लस नेक्स्ट वैल्यू 0.10 दैट इज 0.1 इनटू लेंथ 3. अगर ये हम लोग कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे सो यू विल गेट वैल्यू ऑफ L दैट इज 2.2. अगेन यूनिट रिमेन सेम, बिट्स पर मैसेज. नाउ एंट्रोपी फॉर्मूला देखो, H upon L. So H is 2.1495 upon 2.2. So this gives the value of efficiency which is 0.977. ये हमें अगर परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है सो इनटू 100 होगा, सो दैट इज 97.7%. नेक्स्ट इज रिडंडेंसी. रिडंडेंसी इज 1 माइनस इफिशियंसी. 1 माइनस, ये परसेंटेज का वैल्यू मत ले लो कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए. 1 माइनस दिस वैल्यू 0.977, सो दिस इज 0.023. सो दिस वैल्यू इज 0.023. सॉरी 0.023. दिस इज द वैल्यू ऑफ रिडंडेंसी. अब वेरिएंस कैलकुलेट करना है. वेरिएंस का ये फॉर्मूला है, ये भी बहुत सिंपल है. देखो फॉर्मूला देखो, वेरिएंस का नोटेशन है सिग्मा स्क्वायर. समेशन मतलब सबका एडिशन करना है, प्रोबेबिलिटी इनटू लेंथ ऑफ मैसेज माइनस L ब्रैकेट स्क्वायर. तो एक कैलकुलेशन में दिखाता हूं, ये सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू समेशन मतलब सबका एडिशन करना है. पहला प्रोबेबिलिटी है 0.4, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी इन द ब्रैकेट लेंथ ऑफ मैसेज, इसका लेंथ 1 है, 1 माइनस वैल्यू ऑफ L. वैल्यू ऑफ L इज 2.2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी 0.19, सेकंड प्रोबेबिलिटी इनसाइड द ब्रैकेट, इसका लेंथ है 3 माइनस 2.2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी 0.16 इनसाइड द ब्रैकेट, इसका भी लेंथ 3 है, सो 3 माइनस 2.2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी 0.15, इसका भी लेंथ 3 है, 3 माइनस 2.2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी 0.1, its length is also 3 minus 2.2 bracket square. So if you solve this on the calculator, then value of sigma square, that is variance, is 0.96. This is the way you can attempt the numerical related to Huffman coding. Next type of coding, Shannon-Fano code. Let us discuss one numerical. This is the given problem. Symbols and probabilities are given. If it is asked to construct Shannon-Fano code, calculate entropy, calculate average code word length, which I have not written.
question remains same: calculate entropy, calculate average code word length and calculate efficiency. So these are the given values. पहले एक टेबल तैयार करना है. As usual, all the probabilities should be written in the descending order. Already the values are in descending order: 0.4, 0.3, 0.2, 0.1. अब पार्टीशन करना है. पार्टीशन कैसे करना है? जैसे देखो 4 सिंबल्स है. अगर रफली आई विल से आई विल मार्क द पार्टीशन ओवर हियर. तो पार्टीशन के ऊपर जितने भी वैल्यूज है, इसका आंसर कितना आएगा? 0.4 प्लस 0.3 मतलब 0.7 आएगा. पार्टीशन के नीचे जो दो वैल्यूज है, इसका आंसर आएगा 0.3. ये जो गैप है 0.7 और 0.3 का, ये गैप आ गया 0.4. सपोज आई विल मार्क द पार्टीशन ओवर हियर. तो पार्टीशन के ऊपर वैल्यू आ गया 0.4, नीचे ये सबका एडिशन करेंगे 0.3, 0.2, 0.1, इसका आंसर आ गया 0.6. ये गैप दोनों के बीच का गैप 0.4 और 0.6 का गैप आ रहा है 0.2. जिसमें गैप कम है वहां पे पार्टीशन करना है. तो मैं पार्टीशन यहाँ पे मार्क करता हूँ. हमेशा पार्टीशन नेक्स्ट कॉलम में मार्क करना है. तो पार्टीशन ये दोनों के बीच में आएगा. Whenever you will mark the partition, पार्टीशन के ऊपर जितने भी वैल्यूज है वहां 0 असाइन करना है, नीचे जितने भी वैल्यूज है वहां 1 असाइन करना है. Whenever you left with only one bit, you need to stop the partitioning. तो यहाँ पे स्टॉप करेंगे. अब ऐसे सोचना है, कंसिडर दिस एज वन सिंगल ग्रुप. इसके प्रोबेबिलिटी के वैल्यूज ये है. तो यहाँ पे पार्टीशन कैसे करना है? आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ग्रुप. ये वैल्यू है 0.3, इसका दोनों का एडिशन करेंगे तो ये भी 0.3 आएगा. सो नेचुरली पार्टीशन विल बी ओवर हियर. Whenever you mark the partition, पार्टीशन के ऊपर अब देखो ये ऑलरेडी खत्म हो गया है. ऊपर इसके एक ही वैल्यू है, वहां पे 0 असाइन करना है. एक ही बिट रहता है तो नेक्स्ट कॉलम में स्टॉप लिखेंगे. नीचे जितने भी वैल्यूज है वहां पे 1 असाइन करेंगे. अब ये कंप्लीट होगा. अब ये दो ही बिट्स बचे. सो नेचुरली पार्टीशन विल बी एट द सेंटर ऑफ दिस टू. ऊपर 0 लिखेंगे, नीचे 1 लिखेंगे. फिर यहाँ पे लिखेंगे स्टॉप, यहाँ पे लिखेंगे स्टॉप, बिकॉज ओनली वन बिट इज लेफ्ट. सो दिस इज द वे हाउ यू कैन कंस्ट्रक्ट दिस Shannon-Fano कोड टेबल. अब इसमें कोड लिखना है. लास्ट एंट्री में कोड मतलब हॉरिजॉन्टली वैल्यूज लिखते जाना. देखो ये x1 का कॉलम x1 का रो कंसीडर कर लो. यहाँ पे सिर्फ 0 है तो इसका कोड 0 आ गया. x2 से रिलेटेड कोड यहाँ पे देखो 1 0 है तो इसका कोड लिखा मैंने 1 0. नेक्स्ट 1 1 0, सो इट इज 1 1 0. नेक्स्ट 1 1 1, ये आ गया इसका कोड. इसका लेंथ ब्रैकेट में लिखता हूं मैं. दिस लेंथ इज 1, दिस लेंथ इज 2, दिस लेंथ इज 3, दिस लेंथ इज अगेन 3. सो दिस इज द Shannon-Fano code book. Remaining calculations are very much similar, I mean almost similar to that of open coding which we did just now. तो आप लोगों को H कैलकुलेट करना है, L कैलकुलेट करना है, then calculate efficiency and redundancy. Mutual information, it is defined as amount of information transferred when xi is transferred and yj is received. मतलब आप लोगों ने एक सिंबल, एक मैसेज ट्रांसमिट किया xi and at the receiver you are getting yj, then how much amount of information is getting transferred during this transmission of message is called mutual information. It is denoted by ixi semicolon yj. It is defined as log pi given yj. ये भी ऐसे रीड करना है. Probability of xi given yj. This line, vertical line indicates given. मतलब अगर yj available है then you have probability of xi divided by probability of xi. Properties, mutual information mi is symmetric. Second property, it is always greater than or equals to 0. That means it is non-negative value. Third, it is related to entropy. Mutual information is related to entropy as mutual information is equals to h of x, मतलब entropy of x plus h of y minus h of x comma y, where h of x comma y represents joint entropy. The next part, channel coding theorem or Shannon's second theorem. Statement is given source of m equally likely messages, मतलब एक source है जो generate करता है m messages which are equally likely with m very very greater than 1 and generating information at a rate r. Given that the channel capacity C exists, मतलब एक channel का capacity है that is denoted by C which is existing, and if this information rate is less than or equals to channel capacity, then there exists a coding technique so that you can transmit the message from transmitter to receiver with minimum probability of error. This is the statement of channel coding theorem.
Next is Shannon-Hartley theorem or information capacity theorem. The channel capacity of wide band limited Gaussian noise is given by C, that is channel capacity is B. B is the bandwidth, log to the base 2 in the bracket 1 plus S by N. S is the signal power which is given by integration minus B to plus D, power spectral density, that is PSD, and N is the noise which is integration minus B to plus B N0 by 2 into df. Same equation we can write in terms of N0 as this value can be written as 1 plus S by N0B. So this is about the Shannon-Hartley theorem. Let us solve a numerical. Calculate the capacity of AWGN, that is additive wide Gaussian noise channel, whose bandwidth, BW is bandwidth, whose bandwidth is 1 megahertz. Mega means 10 raised to 6. And S by N ratio is given as 40 dB. This is the formula to calculate channel capacity. In this formula, I need the value of S by N in normal units, not in dB. तो पहले इसका conversion करते हैं. So we have the equation S by N in dB. It is written as 10 log S by N. मतलब कोई भी वैल्यू अगर dB में कैलकुलेट करना है तो हम लोग ऐसे करते हैं 10 log of that value, and by default this log is log to the base 10, not log to the base 2. Given S by N is 40 dB, so I will write it like this: 40 is 10 log S by N. Therefore this 10 I will transfer at the LHS, so it gives me 4 is equals to log S by N. Therefore S by N is anti-log, मतलब ऐसे सोच लो, make it simple, 10 raised to 4. So S by N is 10 raised to 4. ये log यहाँ पे ट्रांसफर किया, it becomes anti-log. Anti-log मतलब 10 raised to लिखना है, so 10 raised to 4. So this is the value of S by N. Now remaining part is simple. Just put the value. C is B. B is bandwidth, which is 1 megahertz. 1 megahertz means 1 into 10 raised to 6 hertz. Log to the base 2. 1 plus S by N. S by N is 10 raised to 4. You just have to do this calculation, and do remember this log, base of this log is log to the base 2. So this gives the value of channel capacity as 13.28 into 10 raised to 6 BPS, which can be written as 13.28 Mbps, megabits per second. So this is the way to calculate the channel capacity. So dear students, that's it for today's session. So thank you. Thanks a lot for watching this video.